चलिए शुरू करते हैं सर्कल का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन इज फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सर्कल रिमेनिंग, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड का जो है उसको स्विच करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस, व्हाट वी सी हियर। वो जो आपका पीडीएफ मैंने भेजा था वो ओपन करके देख लेना फॉर्मूला पेज के लिए, एंड please put it on the group and so that everybody can check that. Make it fast. So now this is the standard circle. Thank you for no discussions. X square plus y square is equal to a square. ये एक circle है and दूसरा circle is the second circle is given over there. Now if I want to find out about the point of intersection of these two circles, भाई कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा मुझे। देखिए ऐसा है, ये जो पहला सर्कल का इक्वेशन है I will write it in the form S1 is equal to 0 and दूसरा सर्कल का जो इक्वेशन है I'll write it in the form S2 is equal to 0. I mean this is equal to 0. S1 is equal to 0 will give me what? Basically this will give me x square plus y square minus 25 is equal to 0. So this is S1 is equal to 0. Okay, ये रहा S1 is equal to 0. If I want to find out the information about the point of intersection of two lines, I will solve their equation simultaneously. तो यहाँ पर मैं दोनों circles का equation simultaneously solve करना चाहूँगा. I mean simultaneously मतलब I'll equate S1 is equal to S2. What I get there? This will give me x square plus y square minus 25 is equal to x square plus y square minus 8x plus 7. इसमें से ये x square plus y square gets cancelled. 8x उधर जाएगा, so this will give me 8x is equal to 32 और x is equal to क्या आएगा 4. If x is equal to 4, how do I get the second point? I will substitute this x is equal to 4 here. This will give me 4 square plus y square is equal to 25 and therefore y square is equal to 9 and therefore y is equal to plus or minus 3. And therefore what are the points of contact, points of intersection? 4 comma 3 and 4 comma minus 3. That is A is the answer. Is this clear? Any doubts about that? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओ भैया कहाँ गया भाई, क्या हो गया, 15 कहाँ से आ गया जी, 7 62 15 कहाँ से आ गया, क्या कर रहे हो आप, पता नहीं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, question number 64. Y is equal to 2x is the chord of the circle. X square plus y square is minus 10x is equal to 0. The equation of the circle with this chord as the diameter. कैसे करेंगे? The equation of the circle with this chord as the diameter. What is the center of the circle? ये कैसे रहेगा circle? Can you please tell me? Look at the circle. If we look at the equation of the circle, we clearly see that it passes through the origin. It passes through origin. If the circle and उसका center कहाँ पर होगा? Divide the coefficient of x by minus 2. So this will become 5 comma 0. Yes or no? It passes through origin. Center is at 5 comma 0. सर्कल को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से होगा ये सर्कल, बताइए मुझे। If I try to draw the circle, ये सर्कल किस तरह से होगा, ये सर्कल सेंटर इज 5 comma 0,
ऐसा होगा ना फिर तो, सेंटर इज 5,0, करेक्ट। एंड कॉर्ड जो है ये y इज इक्वल टू 2x, तो कॉर्ड जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा भाई? द कॉर्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज y इज इक्वल टू 2x, दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू 2x। अब मुझे ये तो 0,0 है, इजंट इट? तो मुझे वो सर्कल चाहिए कि जिसका ये डायमीटर होगा। नाउ इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट, ये तो एक ओरिजिन है, दूसरा ये जो पॉइंट है ओ ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉर्ड एंड द सर्कल x square plus y square minus 10x is equal to 0. If I want to find out this point of intersection, I'll have to solve these two equations simultaneously. मतलब वहाँ पे यार मोबाइल रख देना यार, क्या है? हाँ, तो ये अगर मैं y इज इक्वल टू 2x लिख दूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा वहाँ पे? इसलिए मैं x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0. सो इसमें से 5x कॉमन निकाल दो, इट विल बी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, राइट? व्हेन x इज इक्वल टू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? 2,4. नाउ आई वांट अ सर्कल व्हिच इज हैविंग OA एज द डायमीटर, isn't it? I want a circle which is having OA as the diameter. तो वो सर्कल किस तरह का होगा जी? वो सर्कल कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का सर्कल होगा, सर्कल विद OA as the diameter, करेक्ट है, isn't it? तो इस सर्कल का इक्वेशन बाय डायमीटर फॉर्म, व्हाट इज द डायमीटर फॉर्म? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द डायमीटर फॉर्म? प्लीज टेल मी. x माइनस x1, क्या कर रहे हो यार? x माइनस x2 ओपन करो ना, अगर तुमको याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कम से कम प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें ये मेरा होगा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा बताइए? दिस विल बिकम x इंटू x माइनस 2 प्लस y इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर plus y square minus 2x minus 4y is equal to 0. So this will become, what is the answer there? C is the answer. Is that clear? Oh, next. Let me go for the next question. Yeah, this is the next question. Please read and tell me how do you go for that. ओके, कंटिन्यू करते हैं. मिल गया इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 65. हाँ, द स्ट्रेट लाइन कट्स द सर्कल एट, कहाँ कट करेगा ये देख लो ना. नाउ लुक एट द सर्कल के और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. कैन यू से समथिंग अबाउट दिस इक्वेशंस? क्या बोल सकते हैं? दीज आर नॉट द लाइक एनी काइंड ऑफ इक्वेशन, ऐसा नहीं है वो. एक्स, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
लुक एट दिस इक्वेशंस, ये आपको कुछ रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? डू यू सी दिस थिंग इज गेटिंग रिपीटेड हियर, और ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। y +3 होना चाहिए, दिस इज +3, ठीक है। नाउ लेट मी कॉल दिस एज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y is equal to 0, so that this becomes x square plus y square is equal to 11. अब इसको अगर हम गौर से देखें तो क्या है ये है क्या? ये एक सर्कल है विच इज अ स्टैंडर्ड सर्कल, और ये x एक्सिस y एक्सिस है। This is a standard circle. Acha, what about this line? Can you say anything about this line? Can you say anything about this line? This is the line which basically passes through the origin. एक y is equal to mx type का line है ना? So naturally, clearly, this line will cut this circle at 2 points. 2 points. C is the answer. समझ में आ गया? डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन डिफिकल्ट है नहीं वो। If an infinite number of tangents can be drawn from this point to the circle, this, then what is lambda is equal to? Infinite देखिए, सर्कल के अगर टेंजेंट्स की बात हो रही है तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन, अगर ये एक सर्कल है और उसके टेंजेंट्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल if that point is on the circle, if that point is on the circle, P on circle, so how many number of tangents possible? Number of tangents. So this is the first case. P is on the circle, one tangent is possible. Second, if P is outside the circle, अगर सर्कल है वहां पे and point P is outside, अगर पॉइंट P बाहर की तरफ है कहीं पे, तो यहां से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, यस और नो? दिस इज P आउटसाइड सर्कल, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल? 2. थर्ड केस समझ में आ रहा है? यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 होंगे। If P is inside the circle, तो if P is inside the circle, if P is over here, P inside circle, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? 0। एंड कुछ अलग ही है, दिस इज द सर्कल। ये सर्कल समझ में आ रहा है कैसा है? इट्स इन ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेन। 3D पिक्चर है ये विदाउट गॉगल, दिस इज 3D विदाउट गॉगल। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल हियर? यस, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। P is in a different plane, is not in the plane of the circle, then how many number of tangents possible? Infinite। ठीक है, तो यहां पर ये जो केस है ये नन ऑफ दीज है इसका आंसर। लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा भाई? लैम्बडा का वैल्यू यहां पर नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते। समझ में आ गया? क्योंकि इन दैट केस जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट उस प्लेन में नहीं हो सकता। ये सर्कल जो है वो XY प्लेन का सर्कल है, लेकिन पॉइंट है उसका Z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होना पड़ेगा भाई।
समझ में आ गया? सो इट इज नन ऑफ दिस. समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फर्दर. क्वेश्चन नंबर 67. ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल है बट लिटिल डिफरेंट. ऐसे क्वेश्चंस आपको एक बार अगर आपने पहले देखे होंगे तो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल भी देखा नहीं है तो बाउंसर है. ठीक है. सर्कल्स दिस एंड दिस कैसे पता चलेगा भाई? एक्सटर्नल टचिंग है, इंटरनल टचिंग है, कुछ नहीं है. क्या करना पड़ेगा इसका हमको सेंटर लिखो, रेडियस लिखो, C1 C2, बस दैट्स इट. क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं C1. सेंटर कैसे लिखेंगे भाई इसका? डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y बाय -2. तो ये बनेगा 1, 2. एंड व्हाट इज C2 इज इक्वल टू 4. व्हाट इज R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C. कुछ नहीं है. सो इज दिस √5? यस. व्हाट इज R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 20. 5 4 is 20, 2√5. Correct है? And now I'll find out what is C1 C2 distance by using the distance formula. Square root of 1 minus 0, 1 का square, 2 minus 4 minus 2 का square is 4, and that is equal to √5. So what do you say here? C1 C2 is equal to R2 minus R1, क्योंकि 2√5 minus √5 is √5. Yes or no? Therefore these are touching, therefore they touch internally. Therefore they touch internally. Have we talked about that? Have we seen this earlier? A is the answer. Is this clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 68. The tangents are drawn from the point this to the circle this. Tangents are drawn from the point this to the circle. What kind of circle is this? It's a standard circle. Correct, सही बोला. कौन सा सर्कल है ये? स्टैंडर्ड सर्कल. ये पॉइंट किधर है? 3,4. किधर है ये पॉइंट? अच्छा, what do you say about this circle? What do you say? This is x square plus y square is equal to 3 square. So the radius is 3. सही है. And this point is 3,4. 3,4 मतलब इधर है, ये देखिए, ये रहा पॉइंट 3,0, 3,3. तो 3,4 मतलब यहाँ पर होगा. यस और नो? दिस इज 3,4. तो उसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए. लेकिन इसके लिए एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस इज द, एक ऐसा होगा, नहीं सॉरी, या नहीं, यहाँ से एक ऐसा होगा और दूसरा टेंजेंट ऐसा होगा. अब जहाँ कहीं वो टच कर रहे हैं वहाँ से अगर मैं ये ज्वाइन कर लूँ तो एक ट्रायंगल मिलेगा ना, इजंट इट? एक ट्रायंगल मिलेगा. एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल is equal to, it's given by RL cube divided by R square plus L square. RL cube divided by R square plus L square. What is R? R is the radius of the circle. And what is L? L is the length of the tangent. तो रेडियस तो मुझे पता है 3 है, ठीक है. रेडियस आई नो इट इज 3 एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट. अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया था आपको. व्हाट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1. सही है. तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x के जगह पर 4, y के जगह पर 3, तो ये बनेगा 4, दैट इज 4
क्योंकि 3 square and minus 9 gets cancel. So if I'll substitute there, this will become 3 into 4 का cube divided by r square, that is 3 square plus 4 square. तो भाई that is भी 4 4 64 64 3 जा 192 upon 25. So this is 192 upon 25. Exact answer we get there. C is the answer. Is that clear? Okay. ये नया फॉर्मूला आपको मैंने बताया. This is a new formula that you have to remember. Area of triangle in this case. ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. For the given circles, this and this, which of the following is true? One circle lies inside the other, one circle lies completely outside the other, two circles intersect in 2 points, they touch each other. How do you do? कैसे करेंगे? चलिए पता करते हैं. ये जो सर्कल्स है इसका सेंटर और रेडियस पता कर लेते हैं. So first of all I'll write the center for this and radius for each of these. क्या हो जाएंगे बताइए मेरे को. The center C1 is equal to, divide the coefficient of x and y by -2. There will be 3, 1. And C2 is equal to -1, 4. R1 is equal to square root of 3 3s are 9, 1 1 -1. So the radius is 3. R2 is equal to square root of 1 plus 16 minus 13. So 17 4 2. And what is C1 C2 is equal to, distance C1 C2 is equal to square root of 3 plus 1 4 का square 16, 1 minus 4 3 minus 3 का square is 9, and that is equal to 5. So I can see that C1 C2 is equal to R1 plus R2. So these circles are, one circle lies completely outside the other. So what will be the correct option? Or they touch each other. देखो, वन सर्कल लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द अदर, तो ये ऑप्शन इस तरह का भी तो हो सकता है. व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर? डी इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? एक्सटर्नली इज लिटिल मोर अप्रोप्रिएट. दे टच ईच अदर. एक्सटर्नली इज लिटिल मोर अप्रोप्रिएट. क्वेश्चन नंबर 69. द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस व्हिच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दैट इज गिवन बाय. क्वेश्चन नंबर 70. चेक. 70th क्वेश्चन. नाउ ये क्या सर्कल का इक्वेशन दिया है? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल. सर्कल को अगर हम गौर से देखते हैं तो उसका सेंटर क्या होगा बे? सेंटर 3, -2. And radius square root of 9 plus 4 minus 12. So radius is 1. करेक्ट है ना? कोई भी सर्कल को उन्होंने क्या बोला है कि भाई इस सर्कल को टेंजेंट चाहिए which is parallel to this line. What is this line? 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. अगर इस लाइन को टेंजेंट मेरे को सर्कल चाहिए, तो what I'll say here is actually ये जो लाइन है, ये लाइन को सर्कल टेंजेंट कब होगा? नाउ दिस इज द पैरेलल लाइन. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा 4x प्लस वाई 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्या समझे? क्योंकि स्लोप सेम है, पैरेलल लाइन से, तो मुझे बस सी चाहिए. करेक्ट है ना? विच आर पैरेलल टू दिस लाइन. अब ऐसा एक नहीं, 2 लाइन्स होंगे. एक ऊपर होगा, एक नीचे की तरफ होगा. ऐसे 2 लाइन्स होंगे वे. ये रहा. सो आई विल से द लाइन कैन बी ओवर हियर आल्सो. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर इधर. अगर ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है, इफ दिस इज इक्वल टू द रेडियस, व्हाट इज रेडियस? 1. एंड सेंटर तो मुझे ऑलरेडी पता है. व्हाट इज द सेंटर? 3, 2. सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्कल, दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वल टू, अब इसको मैं कंपेयर करूंगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस लाइन
4x plus 3y plus c is equal to 0, its tangent to the circle if and only if condition क्या है, length of perpendicular drawn from C on the line is equal to radius. मतलब that equation says ax1 plus by1 plus c, straight line, याद आया, 11th standard straight line याद आया, is equal to radius. Now a is क्या लिखेंगे बताइए मुझे यहाँ पर, it will be 4 into 3 plus 3 into minus 2 plus c upon square root of 4 square plus 3 square is equal to radius is 1. सही है, क्या बनेगा फिर बताइए, come on tell me, क्या आएगा ये, 3 4 3 are 12 minus 6 is 6, so 6 plus c upon 5, modulus of this is equal to 1. That means 6 plus c upon 5 is equal to 1, or 6 plus c upon 5 is equal to minus 1. 6 plus c is equal to 5 or c is equal to minus 1. 6 plus c is equal to minus 5 और c is equal to minus 11. तो मुझे दो इक्वेशंस मिल गए, मतलब दो लाइंस मिल गए. Therefore what is the equation of required tangents? Equation of required tangents क्या आएंगे बताइए, is 4x plus 3y plus 1, sorry minus 1 is equal to 0, and 4x plus 3y minus 11 is equal to 0. Is this clear to you? समझ में आ गया? minus 1 and minus 11, 4x plus 3y minus 1 and minus 11. और भाई कहाँ गया तू? हाँ अरे रेडियस ये -12 बनेगा तो इसको +12 बनाना पड़ेगा, तो ये 25 मतलब 5 बनेगा रेडियस. आई जस्ट करेक्ट दिस, दिस इज 5. अगर ये 5 बनेगा तो रेडियस इज 5, रेडियस इज 5. This is 5 minus 5, 25 minus 25. 25 में से 6 गया तो 19 बचा, 25 plus 6 minus 31. So this is my plus 19 or minus 31. Plus 19 minus 31. Plus 19 minus 31. C is the answer. Is this clear? Okay. C is the answer here. ये थोड़ा सा अलग टाइप का था. It was little different. Okay. Next question I'll go for. A circle. Question number 71. A circle x square plus y square is equal to a square cuts a chord of length 2b from the line y is equal to mx plus c. Then a circle cuts the chord of 2b from the line. कौन सा सर्कल है जी ये? स्टैंडर्ड सर्कल. अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल है and the line is chord of length 2b from y is equal to mx plus c. कोई नहीं, हाँ सेंटर रेडियस नहीं, हाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर इज एट द ओरिजिन. अच्छा, द लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c. लेट मी से दिस इज द लाइन.
क्या इसका लाइन का इक्वेशन है? वही इसका इक्वेशन है mx minus y plus c is equal to 0. Let me compare this with ax plus by plus c is equal to 0. सही है? ओके यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ दिस लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, इट मीन से ए बी इज द कॉर्ड, तो इसका लेंथ है 2b. 2b का मतलब है ये है b और ये भी है b. सही है या नहीं है? एंड इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, if I'll drop a perpendicular from this center, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, then the बाकी इन्होंने पूछा है यहाँ पे, and I also know the radius over here. What is the radius? Let me say this is AB, this is OB and this is P. Radius कितना है जी इसका? This radius is equal to A. R is equal to A. Yes or no? That means what is OP square is equal to? Can you tell me what is OP square? Because this is perpendicular. So I would say OP square is equal to OA square minus AP square. OA square is equal to A square minus AP square is equal to B square. This is OP square. Correct है? That means what is OP is equal to? OP is equal to square root of A square minus B square. I hope you understand that. But also what is OP is equal to? OP is equal to length of perpendicular drawn from origin on the line कौन सा line? mx minus y plus c is equal to 0. Is this clear? समझे क्या? And what is the length of the perpendicular drawn from origin on any line? This is equal to modulus of c upon square root of a square plus b square. समझे क्या? Y is equal to mx plus c mx. हाँ, so what is c here? C is c here. What is a here? m square m. What is b here? -1. तो -1 मतलब +1 आएगा. ये is equal to the radius is OP मतलब square root of a square plus b square, a square minus b square. Now basically I don't want this square root sign, and also square and cross multiply, and I think we get the answer. Square and cross multiply, तो क्या मिलेगा? Square and cross multiply, so this will give me c square is equal to a square minus b square times m square plus 1. I think we are there, are we? C square is equal to a square minus b square times m square plus b square, m square plus 1. So b is the answer there. Is that clear? Any doubts? अलग था ये थोड़ा सा. It was a good question. It was a good question. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ. The centers of the circles this and this are. क्या बोलेंगे? What is the center of this circle? 0, 0. First center. What is the center of the second circle? Divide the coefficient of x and y by -2. So ये आएगा -3, 1. And what is center 3? इसका center आएगा 6, -2. What do you say about these circles? What do you say about these points? क्या बोलते हैं? Yes, please. अच्छा मुझे बताइए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ C1 C2 एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ C1 C3? क्या आएगा स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus 1 x1. Is it 1 minus 1 by 3? और इसका स्लोप होगा -2 upon 6. दैट इज ऑल्सो -1 by 3. अगर C1 है ये, C2 है ये, तो C1 C2 का स्लोप, C1 C2 का स्लोप एंड C1 C3 का स्लोप अगर सेम है, C1 C2 का स्लोप एंड C1 C3 का स्लोप अगर सेम है, तो आर नॉट दे कोलिनियर?
collinear. They are collinear. Is this clear? B is the answer. समझ में आ गया? ट्रिकी है थोड़े से क्वेश्चंस ये, इजी है पर ट्रिकी है, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. द एरिया ऑफ अ सर्कल, the area of the circle whose center is this and passes through the point this is. tricky है. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस होगा cp, which I can find out by using the distance formula. सही है ना? 4 minus 1 bracket square plus 6 minus 2 bracket square, मतलब square root of 3 square plus 4 square, and that is equal to 5. So radius is equal to 5. So what is the area? Pi 5 square 25 pi. Is that clear? समझे क्या? C is the answer. Next question. The common chord for the circle this and this is. कॉमन कॉर्ड क्या होता है पता है क्या? दो सर्कल्स का अगर कॉमन कॉर्ड मुझे चाहिए, इफ आई वांट अ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड इज दिस कॉर्ड. So if I want a common chord, here a common chord. This is also called as radical axis, and I told you about its equation. Radical axis, or it is also called as common chord. It can be common tangent also depending upon the situation. और उसका इक्वेशन होता है S1 is equal to S2. तो बस मुझे इक्वेशंस अगर मैं इक्वेट कर लूँ S1 is equal to S2, तो क्या क्या कैंसिल होगा देखो. x1 x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल होगा. ये 4x उधर जाएगा तो इधर क्या बनेगा, वो 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. That means x plus y plus 1 is equal to 0. A is the answer. Easy? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next question. 75. A circle touches the y-axis at 0,4 and cuts x-axis in a chord of length 6 units. What is the radius of the circle? The circle touches, कैसे होगा ये? Question number बेस सर्कल इस तरह का होगा, ठीक है ना? इट इज टचिंग y एक्सिस एट सर्टेन पॉइंट. व्हाट इज दैट पॉइंट? 0,4. एंड इट कट्स x एक्सिस इन द कॉर्ड ऑफ 6 यूनिट्स. ये 6 यूनिट्स है, ये उसका सेंटर होगा यहाँ पे. सही है कि नहीं है? ठीक है. तो इफ आई ज्वाइन दिस, अगर मैं यहाँ से पॉइंट ड्रॉ कर लूँ, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लूँ, देखिए इस कॉर्ड का लेंथ, आई विल से दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज पॉइंट P. ठीक है. तो AB जो कॉर्ड है वो 6 यूनिट्स का है. 6 यूनिट्स मतलब दिस इज 3 and 3. करेक्ट है? करेक्ट है. हाँ, यहाँ पर वो टच कर रहा है, तो ये जो हाइट है कितनी है? हाँ करेक्ट है, बिकॉज इफ दिस इज 4 है ना, तो दिस इज ऑल्सो 4 एंड देयरफॉर व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? 3 4 5. तो मुझे उन्होंने क्या पूछा है? रेडियस. इस डायग्राम की वजह से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सी इज द आंसर. यस और नो? 3 4 5. इज दैट क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 75 इज डन. क्वेश्चन नंबर 76. देखो तुम्हारे लिए सर्कल है एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द टाइप्स ऑफ सर्कल हियर, लेकिन फिर भी एक टाइप रह ही जाता है. देखते हैं अभी उसका क्या कर सकते हैं. इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली. आर दीज पैरेलल लाइंस?
अगर ये लाइंस पैरेलल है तो दोनों के बीच में डायमीटर होगा। हाँ, अभी मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक फार्मूला देखा था। क्या फार्मूला देखा था भाई? अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा है ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, then the perpendicular distance between these two lines is given by, come on, what is d is equal to? Modulus of c minus c dash upon square root of a square plus b square. सही है। तो बस यहाँ पे मुझे पहले इस इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बनेगा? 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज c एंड दिस इज सी डैश। क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर इधर हम लिख लेते हैं, लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, तो इट विल बी 4 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट इज d इज इक्वल टू 15/2 upon 5, 5 3s are, so this is 3/2. ये है diameter which is equal to 2 times the radius. So what is radius is equal to 3/4. Is that clear? So B is the answer. Are you all understanding that? समझ में आ रहा है? Good. Question number 77. The radius of the circle which passes through the center of the circle this and concentric with the circle. दिस मस्त दिया है। इस सर्कल के साथ वो कॉन्सेंट्रिक है, तो मुझे इसका सेंटर मिल गया। इस सेंटर के लिए आई हैव टू डिवाइड दिस थ्रू आउट बाई 2। क्या मिलेगा बताइए? दिस विल बिकम, बोलो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर जो रहेगा वो इसी का सेंटर होगा। तो व्हाट इज द सेंटर? डिवाइड दिस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y बाय -2। सो इज दैट 2/3? 2,3? yes. and which passes through the center of the circle. अब ये सेंटर है and it also passes through the center of this circle, so this is any point P. समझ में आ रहा है क्या? तो इसका सेंटर जो होगा C2, it will be any point P and it is divided this by -2, that is -4, and this is -5. तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस। समझ में आ रहा है? इसका रेडियस होगा CP, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस -4, 2 प्लस 4 6 स्क्वायर, 3 माइनस -5 3 प्लस 5 8 स्क्वायर, तो 6 8 10। तो रेडियस इज 10, सेंटर इज दिस। सो व्हाट इज द, क्या पूछा इन्होंने? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस इज 10, डन। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अगला क्वेश्चन 78। फ्रॉम द ओरिजिन chords are drawn to the circle this. The equation of locus of the midpoint of these chords. Wow. कैसे करेंगे? What is the circle? अगर मैं इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में देख लूँ तो it is x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to r square. तो सेंटर क्या हो गया इसका? c is equal to 1,0. सही है? c is equal to 1,0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 1। सर्कल को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो किस तरह से होगा रे वो? ठीक है भाई, ये सर्कल हो गया, सेंटर 1,0, रेडियस इज 1 एंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट, द कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो कॉर्ड ड्रॉ किए जाएंगे वो किस तरह के होंगे भाई? ओरिजिन से अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा एक होगा, ऐसा एक होगा, ऐसा एक होगा, है ना? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये भी एक कॉर्ड ही है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इस सब का अगर मैं एक ज्वाइन करूंगा तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लोकस? समझ में आया क्या? इज दैट क्लियर? अच्छा, तो इसका जो भी कुछ इक्वेशन होगा
This point C will satisfy that equation because this is also one of the midpoints of the chord. Diameter is the biggest chord. So whatever that locus is, it will be satisfied this by this point C. Check करो कौन सा satisfy कर रहा है. If I'll satisfy, isn't it? ये satisfy करेगा. तो यहाँ पर 1,0 check कर लो substitute करके. 1 minus 3 not satisfying. Correct ना? Then 1 minus ये भी नहीं है. 1 plus 0 minus 1 it does satisfy. This is the answer. ये भी नहीं कर रहा है satisfy. Is this okay? That's so simple. समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 79. या क्या दिया यहाँ पे? If one end of the diameter of the circle be this, then the other end is. सर्कल का इक्वेशन दिया है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी है. अब मैं चित्र बनाऊंगा ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा. ये एक सर्कल है, ठीक है. ये उसका एक डायमीटर होगा, ठीक है. इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? 2/3. डायमीटर का एक एंड क्या है? 3,4. They are asking what is the other end of the diameter. Midpoint formula. Let me call this as x and y. Therefore 2 is equal to 3 plus x by 2. Yes or no? And 3 is equal to 4 plus y by 2. So this is 2 to the 4 minus 3x is equal to 1. 3 to the 6 minus 4y is equal to 2. So 1,2. Was that easy? बहुत इजी था यार, है ना. और ऐसे पूछते हैं सीटी में. नेक्स्ट, इफ द लाइन दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, देन अगर ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर है तो देन इट विल satisfy, it will pass through the center. It will satisfy the center के कोऑर्डिनेट जो होंगे, जो कि यहाँ पर होंगे 3,-1. इट विल satisfy दिस इक्वेशन. करेक्ट. तो सब्स्टिट्यूट कर लो. तो x के जगह पर 3 minus 2b plus 7 is equal to 0. So 2b is equal to 10 and b is equal to 5. D is the answer. Is this okay? Well, circle is over here. मतलब सर्कल आपको चाहिए तो इसका एक मैंने होमवर्क इसका ऐसे लाइक जो क्वेश्चंस थे 80 तक क्वेश्चंस थे, मतलब तकरीबन 60 क्वेश्चंस वे देयर. आई फिनिश्ड इट ऑल. नहीं, कितने थे? 30 एंड क्या व्हाटएवर जो भी है, 50-60 क्वेश्चन थे, वो मैंने ख़त्म कर लिया. आपको इसका क्लास वर्क के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. समवेयर अराउंड कितने? 64, 34 क्वेश्चंस का एक है वहाँ पे क्लास वर्क, तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा. अभी मैं स्ट्रेट लाइन के लिए जाऊँ. I'll go for स्ट्रेट लाइन नो. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व करना चाहूँगा. ठीक है, I'll go for straight line now. One second. स्ट्रेट लाइन मैंने आपको इलेवंथ में सिखाया था, उसका आपने को रिफ्रेश करना है. ठीक है, एनसीईआरटी एक्चुअली सर्कल जो एनसीईआरटी में दिया है ना, उसमें इनसफिशिएंट क्वेश्चंस है मेरे, जो मैं देख पा रहा हूँ. चलिए कंटिन्यू करते हैं.
So let's begin. Circle, sorry, straight line. जो मैंने स्टार या हाफ स्टार मार्क किए थे सिर्फ वही क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा. आई रिपीट, जो मैंने स्टार या हाफ स्टार मार्क किए थे वही क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा, इजी वाले नहीं करूंगा मैं सॉल्व. ठीक है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. मोटे नहीं बोलू, वाडला वाडला. फाइन. इज दैट ओके नाउ? फाइन. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. देखिए, slope of any line is having y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope is also given by tan theta. ठीक है ना. तो मुझे उन्होंने थीटा पूछा है. So what is y2 minus y1? So this is minus 2 minus minus 1, that is minus 1 upon 4 minus 3 is 1. करेक्ट ना. सो ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका tan रेशियो -1 है? 135. बिकॉज tan ऑफ 45 है ना, tan ऑफ 45 इज 1. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर 45 का tan 1 है, मैं आपको बता दूं 90 प्लस 45 करेक्ट, -1 आएगा. सो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 135. So the answer here is B. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो ये हाफ स्टार या ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम. I'll go for question number 10. The points this, I'll call this point as A, this point is B and this point is C, are collinear. अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, आर कोलिनियर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, व्हाटएवर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका स्लोप फाइंड आउट करूँगा. ठीक है. आई विल फाइंड आउट स्लोप ऑफ ए बी एंड आई विल फाइंड आउट स्लोप ऑफ लेट्स से बी सी. कोई भी दो पॉइंट्स. क्या बनेगा इसका स्लोप बताइए? इट इज़ y2 k प्लस 1 माइनस के माइनस 2 अपॉन k माइनस के प्लस 1 एंड बी सी का स्लोप होगा k माइनस के माइनस 1 एंड दिस इज k प्लस 1 माइनस k. तो कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. क्या हो रहा है? k इज गेटिंग कैंसिल. व्हाट यू गेट हियर? दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, दैट इज -1 and slope of this a is -1. So for any value of k their slopes are equal. So they are parallel for any value of k. They are collinear for any value of k. Is that clear? क्योंकि k is cancelled there from the slope. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. The points, let me call these points as a, b and c are the vertices of an, कौन सा triangle है ये? This is some triangle. So let me say what is the slope of these lines. What is slope of AB? Slope of AB क्या आएगा? 3 minus 8 upon 3 divided by 1. And slope of any other, like slope of BC. This is 30 minus 3 upon 82 minus 1. Oh my god. And slope of AC भी फाइंड आउट कर लेते हैं. AC क्या आएगा? 30 माइनस 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 82. चलिए देखते हैं क्या आएगा. 3 3 9 माइनस 1 बाय 3. अच्छा, इसका क्या आएगा? 29 अपॉन 81 विच इज ऑल्सो 1 बाय 3. नाउ आई डोंट नीड टू गो फर्दर बिकॉज अगर AB और BC का स्लोप सेम है, AB कहाँ पर है यार? कहीं पर भी होगा. दिस इज AB एंड
आपको क्या लगता है? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. नो, दे आर कोलिनियर ना. सो नन ऑफ दिस, दे आर नॉट, बिकॉज अगर कोलिनियर है therefore A, B, C are collinear. अगर collinear है तो they cannot form a triangle. So none of these will be the answer. Is that clear? समझे क्या? We are not doing any rocket science. बहुत simple वाले questions हम solve कर रहे हैं. Question number 12. If the points, let me call this as A, B and C are collinear, then the number of values of theta is. कैसे करेंगे? तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट देयर स्लोप्स. अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, उन्होंने बताया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स आई कैन से हियर दैट m of AB is equal to m of BC. So what is m of AB? y2 minus y1, मतलब 1 upon root 3 minus 0 divided by minus 1 plus 2 is equal to BC. It is sin theta minus 1 upon root 3. This is cos theta plus 1. सही है? Isn't it? क्या बनेगा ये? This is 1 by root 3, correct? Upon 1, मतलब 1 by root 3 in short, is equal to root 3 sin theta minus 1 upon root 3 times cos थीटा प्लस 1. अभी रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर? दिस विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा माइनस 1. सही है? और आई ट्रांसफर दिस ऑन द अदर साइड. ये क्या बन जाएगा? और ये इधर आएगा. So 1 plus 1 2 is equal to root 3 sin theta minus cos theta. Well, I'll divide this throughout by 2. सही है? So this will become root 3 by 2 into sin theta minus 1 upon 2 into cos theta is equal to 1. Now let me call this as cos of something. I'll call this as cos of pi by 6 and this is sin of pi by 6. So is this sin A cos B minus cos A sin B? So is this sin of theta minus pi by 6 is equal to 1? That means theta minus pi by 6 is equal to 90 degree pi by 2, because this is sin pi by 2. Yes or no? And therefore what is theta is equal to 90 plus 30 120 डिग्री. बराबर है क्या? या तो फिर मैं इसको बोल सकता हूँ साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने देखा था कुछ, याद है? इफ लाइक साइन ऑफ एक्स is equal to sin alpha, then what is x is equal to? It is n pi plus minus 1 raised to n times alpha. ये 12th standard trigonometric equations, 12th standard trigonometric equations दिखा दूं? अच्छा, you trust me. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं. अभी तक हमारा हुआ नहीं है तो उसके ऊपर, हाँ नहीं हुआ है तो उसमें मतलब बोर्ड में हो गया है, सीईटी में नहीं गया. हाँ सीईटी. तो इन दैट केस व्हाट इज थीटा माइनस पाई बाय 6? थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू एन पाई प्लस क्या आएगा ये, प्लस माइनस 1 रेज टू एन टाइम्स अल्फा, दैट इज पाई बाय 2. तो इस तरह से इसके नंबर ऑफ इक्वेशंस जो आएंगे वो डी, नन ऑफ दिस, ज़्यादा ही आएंगे, 0 1 2 से भी ज़्यादा होंगे इसके वैल्यूज़. सो द आंसर इज डी. अच्छा, तो मेरे को इसको डबल स्टार बोलना पड़ेगा. 12th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. कोई बात नहीं, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17.
द पॉइंट्स, चलो ये वाला इजी होगा, देखिए द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर, क्या बोलेंगे? I have to find out these points first of all. Let me call these points as A, B, C, D, whatever. क्या आएंगे? Say this is A, ये origin है. Let me call this as B, and let me call the third one as C. तो what do you say about these points? ये तीनों तो कोलिनियर है. Are not these collinear? कैसे 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 हाँ बोल रहे हो ना? हाँ कैसे? ऐसे जोर से हाँ नहीं बोलने का फिर. नहीं कैसे बता दो, है तो कोलिनियर, लेकिन सोचो तो. हाँ स्लोप का एक पॉइंट है -a, -b. अगर ये -a है और ये -b है तो ये समझो कि इधर है. दिस इज -a -b, so this is -a, -b. और दूसरा पॉइंट है a, b, तो ये उतनी ही डिस्टेंस पर होगा और उतने ही हाइट पर होगा, तो ये होगा तुम्हारा a, b. यस और नो? करेक्ट है. तो नेचुरली दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये जो पॉइंट्स है वो तो कोलिनियर है भाई, नहीं? दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये रहा एक पॉइंट, ये ओरिजिन है, और ये दूसरा पॉइंट, तो दीज थ्री आर कोलिनियर. अब बस मुझे एक चीज चेक करनी है कि ओसी का स्लोप क्या है, बस वो चेक करना है मुझे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो ओसी का स्लोप अगर मैं चेक करता हूँ, व्हाट इज स्लोप ऑफ ओसी? इट विल बी AB - 0 upon a square. It gets cancelled. This is B by A. 17. Yeah. So इसका स्लोप सेम है ना? I think it is the same as that of slope of OB. Slope of OB is also B by A. अब ये सब कोलिनियर होंगे, so therefore these are collinear. समझ में आ गया? ये तो मुझे क्लियरली दिख ही रहा है ना, ये कोलिनियर है. 3 देख के कैसे सीधा टिक करोगे? इट कैन बी पैरेललोग्राम आल्सो, रेक्टेंगल आल्सो. क्यों नहीं हो सकता? आई विल गेट वन. हाँ स्ट्रेट होगा तो नहीं हो सकता. करेक्ट है, सही है. रोको ना यार थोड़ा सा. ठीक है, आई स्टॉप हियर. बाय बाय. ओके, आई स्टॉप हियर. हुसैन काचवाला, गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग हुसैन, वेरी गुड इवनिंग. नेहा सिंह डिडंट ज्वाइन ना? उसने कोई कमेंट नहीं किया तो कैसे? कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो. ओके एवरीवन.